आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी हमें बहुत ज्यादा सजेशन मिल रही है और हम लोगों ने पहले एक वीडियो देखी थी, लेकिन आई थिंक ये उसका कोई सेकंड पार्ट आया है जो कि हमें सजेस्ट किया जा रहा है। टाइटल पूछ लेते हैं मौसम से। टाइटल है वेयर आर दे नाउ इंडियंस फ्रॉम 1967। यानी कि पहले जो हम लोगों ने वीडियो देखी थी वो हम लोगों ने देखा था कि 47 से 67 तक जो 15 अगस्त को जो पैदा हुए थे लोग 20 साल बाद जो है वो उनका इंटरव्यू लिया गया था, यानी 1967 में 15 अगस्त 47 से लेकर 67 तक। तो अभी भाई मुझे तो वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि हम उन लोगों को देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो देखें उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे। इंडियंस फ्रॉम 1967 टॉक अबाउट द फ्यूचर। वीडियो हुई थी पूरी फ्लॉप। जस्ट अंटिल अ फ्यू मंथ्स अगो इसके 10,000 भी व्यूज नहीं हुए थे। फिर वन डे अभी न्यू ने इस पे एक कमेंट डाल दिया, दिस इज गोल्ड। और फिर क्या था, फिर जो ये वीडियो उठी है, in less than a week the video got over 4 lakh views. The comments started pouring, reaction videos बनने लगे, Twitter threads, Reddit threads. Basically I got famous. So the video is basically an edit of another video that was made in the year 1967 titled I Am 20. It was made by the Film Division of India, which, as the name suggests, is a division of India that makes films. The Film Division did some really interesting work in the past, but as of lately, their work is a bit unusual. I Am 20 का premise काफी simple है. In the year 1967, 20 years after the British had said Tata bye-bye to India, the filmmaker S.N.S. Shastri decided to interview some 20-year-olds who were born in the year 1947. Shastri ji ने उन्हें interview किया about their thoughts, aspirations and goals in life. He asked them about what they feel about India and what they think is the future of India going to look like. मैं almost इस video के सारे details भूल चुका था, so I decided to watch it again along with you guys. What I like about this video is that it has so many layers to it. It has people from all over India, from different regions, from different economies, from different political backgrounds. For example, there is a person who loves India. I'm an Indian and India means everything to me. I'm a part and parcel of India. India is a part of my life. And then there is someone who does not love India. I don't have any love for the country. There are some people who are affluent. I have more money to buy things. And then there are people with limited needs. हम घर में 13 महीने हमारी मजदूरी पूर्ति नहीं है साहब। There are some people who are hopeful about India. I would say our achievement is that we have a hopeful tomorrow. And then some who are not. I don't think there's any future left for us. You know what amuses me the most? It is the idea of the video itself. Such an idea seems to be so wacky, you would expect it to exist in the 21st century. Something that humans of New York would do, or something that a BuzzFeed could create. For something so refreshing to exist in 1967, it just makes it all the more intriguing. अगर तुम इस वीडियो की एडिट को भी देखोगे, it's so intelligently made as if शास्त्री जी तुमसे बात कर रहे हैं, as a time capsule for you to appreciate the past. I later also found out that there was a Russian film released in the year 1962 जिसका नाम was I Am 20. उस फिल्म का प्लॉट revolved around 3 friends who wonder about the future and meaning of life, and they try to find their place in society. Now, I don't know about you, but I am willing to place a bet that that film somehow must have influenced Shastri ji in naming this film at least. Anyway, so I loved going through all the comments and I resonated with them quite a bit. My favorite one was this, जहाँ पे you said कि ये सारे actors हैं and probably 60s का makeup करके ये बस बात कर रहे हैं. किसी ने ये भी बोला कि अगर तुम इस वीडियो को कलर कर दो तो ये ऐसा लगेगा जैसा कि आज के टाइम में कोई बोल रहा है. That idea just stuck to my mind and I was like, मैं तो ये करने वाला हूँ. And so for 6 hours मैंने अपने लैपटॉप का बैंड बजा के एक very powerful AI algorithm run किया and I colorized the whole video and you can find it over here in the link above. I feel the color makes the video even more surreal, as if this is something that was shot just yesterday and these are people you know from your class or from your college.
कमेंट्स में काफियों ने ये भी पूछा कि भाई इन सब की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है। आई थिंक दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन कंसिडरिंग द फैक्ट कि 1967 में इंडिया की लिटरेसी रेट वाज जस्ट अराउंड 31%। तो तुम्हारा ये मानना गलत नहीं होगा कि उस टाइम पे पीपल कुडंट इवन रीड एंड राइट, लेट अलोन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। Well, so how are they so good in English? Shastri ji was not very happy with the first round of interviews that he did in rural India or city streets of India. उनको चाहिए था कुछ smart answers, thoughtful answers. So he went to India's best college. Well, one of the best colleges, IIT Bombay, and he interviewed some of their brightest students there. Therefore, many of these English-speaking boys that you see in this video are from IIT Bombay, which explains why they might seem a bit more educated than your average Indian. Side note, I come from an IIT as well, and I can assure you that this is not common for a lot of IITians today to speak with this fluency. By the way, I also feel personally that the English used in this video is much closer to British English, while the Indian English that we use today is much close to American English, which is why the language here might seem a bit more formal, articulate, and fluent compared to today's standards. Well, but that's a topic for another video. Anyway, काफी सारा बिल्डअप हो गया, अब मुद्दे पे आते हैं। The very reason this video was made was to answer a burning question that all of you asked. कहाँ हैं ये सारे लोग? What happened to them? कौन इंडिया में है? कौन चला गया? इनके नाम क्या है? ओके बाबा, calm down, बैठ जाओ, बता रहा हूँ। So ये फिल्म में कभी कोई क्रेडिट्स मेंशन नहीं हुए थे, so we don't have access to their names directly. But I have some good news for you. काफी जासूसी और तहकीकात के बाद I have found out the names of 7 people from this video. I had to use a lot of Sam, Dam, Dand, Bed. Actually not, I just had to Google and send some emails. But ठीक है, बहुत बकर हो गया, चलो शुरू करते हैं। The name of this charming young lady is Naina Puranik. She is the only person from an urban city जो कि हिंदी में बात करती है, इंग्लिश में नहीं। She talks about how eve teasing is on the rise. लेकिन ना आजकल के लड़के क्या करते हैं, बस आते हैं, धक्का देते हैं और भी कुछ करते हैं और भी बड़ी बुरी मिस्चिफ करते हैं। In another scene, she is asked if she'll choose her own husband. कौन सिलेक्ट करेगा? ओह देखिए, अगर मुझे अच्छा लगा, दिख पड़ा, अच्छा पढ़ा लिखा है, नेचर अच्छा है, तो मैं भी कर सकूंगी। अगर मुझे भी कुछ उसके लिए फीलिंग्स हो गए तो। Compare this response to that of the girl who spoke just before her. शादी हो गई? हो गई सर। कब हुई? 12 साल हो गया। वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? 8 साल। कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी थी सर। कोई बात याद है शादी की? नहीं है साहब, अच्छा खाने मिल रहा था, मिठाई, अच्छा कपड़ा मिल रहे थे। Notice करो कि how Naina ji was representative of the free urban girl of the 1960s India. A lot of you in the comments were also simping for her. Oh, she has big eyes, she can be an actress, wah. I mean, I don't blame you. She was also asked if she dreams of being a possible film star. And Naina ji says, देखिए, हीरोइन बनना तो मैं अच्छा समझती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लिए वो बात नहीं है, मैं नहीं बन सकूंगी। Naina ji today lives in Jabalpur, and according to an article by The Mint, नैना जी ने अपने फैमिली को पूरे 50 साल तक इस वीडियो के बारे में नहीं बताया था। When she saw a photo of herself from this video, she said, जब मैं पिक्चर को देखी तो मैं जोर से चिल्लाई और अपने पति को बोली कि ये तो मैं हूँ। मैं तब काफी छोटी थी, मेरे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही मेरी शादी हो गई थी और मैं अपने शादीशुदा जीवन और अपने बच्चों में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि ये फिल्म मेरे माइंड से निकल गया। नैना जी का जन्म 20 अगस्त 1947 को हुआ था। जिस टाइम पे ये वीडियो शूट हो रहा था तब वो SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई में पढ़ रही थी। उनकी मदर उस वीडियो में आने से रिलक्टेंट थी, सो द फिल्म मेकर इन्वाइटेड बोथ ऑफ देम टू फिल्म सिटी इन गोरेगांव वेयर दिस सीन वाज शॉट। She got married to Wing Commander Arvind Vasudko Rao Puranik and she has 3 children with him. जब नैना जी को पूछा गया कि कैसा लगा उनको अपने 20 साल के वर्जन को देखकर, तो वो बोली, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाई कि ये मैं हूँ। कहाँ 20, कहाँ 71। उनको जब अपने जॉब करियर के बारे में पूछा गया, शी सेड, मेरी माँ ने मुझे कभी कोई चांस ही नहीं दिया कोई करियर परस्यू करने का, मैं कभी एनकरेज ही नहीं हुई, बस यही कमी रहेगी। The last we see of Naina ji in the film is when she is asked of her thoughts of India in the future, to which she very innocently says, हिंदुस्तान का भविष्य तो वैसा आज मैं कैसे बता सकूंगी। Alright, so that was Naina Puranik ji, the beautiful girl from 1960s. Now let's move on. একটা স্বাধীনতা আছে আমার মনে হয় যেটা সত্যি স্বাধীনতা, সেটা হলো মনের স্বাধীনতা। अगर उस टाइम में मैं स्टूडेंट होता ना IIT बॉम्बे में, तो ये बंदा मेरा बेस्ट फ्रेंड होता, क्योंकि हम दोनों ऐसी एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल बातों में बहुत कनेक्ट करते हैं। ऑल्सो तुम में से काफी लोग इन पे भी सिम्प कर रहे थे, कॉलिंग हिम सैफ अली खान एंड व्हाट नॉट। अगेन, आई डोंट जज यू गाइज बिकॉज इनफैक्ट मैं भी सिम्प कर रहा था। ही इज द ओनली गाय फ्रॉम IIT बॉम्बे हु टॉक्स इन शुद्धू बांग्ला
and confesses his love for learning languages and never finding the opportunity to do it. তা অনেক কিছুই করতে চাই, ফ্রেঞ্চ পড়তে চাই, জার্মান পড়তে চাই, রাশিয়ান পড়তে চাই, সে কখনো সময় পায় না, কখনো উপায় পায় না। I mean, at this point, I'm thinking, that is so mean. Look at what he's saying. দারুণ ক্যাপ্টেন পটৌডি, কিন্তু আসলে যখন পটৌডি একটা সেঞ্চুরি করে তখন আমার মনে হয় না যে আমি একটা কিছু করেছি। আমার মনে হয় যদি আমি একটা সেঞ্চুরি করি তাহলে তাহলে আমার সুখ হয়, আমার শান্তি হয়। Amar shukh hoy, amar shanti hoy. Look at what he's saying. He says admiring role models is great, but I wish I did something that gave me the personal glory and satisfaction. That is again a sentiment I resonate with. What a guy, dude. What an amazing guy. So his name is Anubroto Kumar Roy, affectionately called as Dunu Roy. After he graduated from IT, he went to work in rural development, spending 17 years in a single district in central India, where he helped villagers plan their lives and solve basic problems. Basically, he became real-life Mohan Bhargav. Today, he's the director of the Hazard Center in New Delhi, where he works with the urban poor who live in the margins of our society. राशन की दुकान वाला एक है कि चार है? एक है। FSO साहब एक है कि चार हैं? तो जब ये एक हैं, तो आप क्यों चार हैं? तो इसीलिए अगर आपको कुछ करना है, आपको भी एक होना पड़ेगा। Some of you remarked that at the time of the interview in 1967, there was a communist revolution taking place in Bengal, and so Dunuji's remark on Mone Shadhinota should be seen against those settings. You can see a passion for revolution, a sense of standing for the masses in this Bengali man. Common sense says congestion on roads is caused by cars. Wisdom says no, you must remove the cycle. You must remove the street vendor. Why? Because these are the people who stand in the way of the car going fast. That's how the poor get moved out. That's what exclusion is all about. Also, big reveal, he was my point of contact for a majority of the research in this video. He was really nice to me in replying to my emails, told me about the names of the people I was looking for, and he thanked us all who showed all this massive interest in the video. What an amazing guy. Let's move on. Dunuji ने मुझे कुछ ऐसे facts भी बताए that I wouldn't have been able to find out on my own. For example, the person who appears in the film for a few seconds in the beginning is Ashutosh Haldipur. He does not speak in the video, but he was a classmate of Dunuji's. The only trace I could find about him online was his LinkedIn profile, and according to this profile, he moved to the States soon after he graduated in 1969 to pursue a master's in materials engineering. He now lives in Buda, Texas, and he seems to have retired in 2002 as a process engineer in Motorola. When I feel that foreign blades are more economical than our Indian blades, why shouldn't I go and use them? Because I save my money. Because I very strongly believe that they serve the much better purpose and are more economical. I'm embarrassed to tell you guys that I had no clue how famous this foreign blades guy was. I say was because Aditya Kashyap passed away from cardiac arrest following his diagnosis with cancer in 2007. After graduating from IIT Bombay, Kashyap ji went on to study at IIM Calcutta. He spent 22 years in Tata Steel, formerly known as Tisco, where he became a joint director. He was a protege and an adopted son of Rasi Modi, who he was very close to. The media houses often referred to him as Modi's blue-eyed boy. Very interestingly, in 2006, he also became the president of the Indian Football Association after being the president of the Bengal club. He had also arranged for players to go to Sao Paulo to get football coaching. He was also responsible for organizing the Super Soccer Cup in India and to get Sahara as a sponsor. He died a bachelor in 2007 in Kolkata. Progress. Of course we made progress. The sort of progress you show us in your documentary films. But after all, a child would grow, even if it didn't have the sufficient nourishment. Victor Meneses is the definition of a pure bad. He drops truth bombs like there ain't no tomorrow. अगर ये बंदा मेरा क्लासमेट होता ना तो मेरी इससे बहुत फटती. Because I see in his eyes a kind of energy that just intimidates me. He says कि इनको IAS बनना है. For some people, security is a warm blanket. For me, security is a government job. I would like to join the IAS. और इनको एक AC रूम में बैठना है. I would like to sit in a comfortable chair, in an air-conditioned room, sign a couple of files here and there, write my comments in the margin, drink cups of coffee, attend meeting, and just sort of be a cog in the machine. What I did not include in the edit was कि इन्हें अपने बॉस की बेटी से भी शादी करनी है for some reason. I will join government service. I must join government service. I would like to marry my boss's daughter, if I could. Don't ask me why. ये शायद इस वीडियो के इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनकी प्रेडिक्शन अपने बारे में पूरी की पूरी गलत साबित हुई.
Victor G, after graduating from IIT Bombay with a degree in electrical engineering, did an MBA from MIT Sloan School of Management. Not bad. He did pretty damn well for himself in the States, joining Citicorp in corporate banking. In 95, he rose to the position of Chief Financial Officer and he retired from Citigroup as a Senior Vice Chairman. Alright, get ready for his resume. Currently, Victor Meneses chairs the advisory board for Citi India, is a senior advisor for the New Silk Road, chairs the American India Foundation, is a vice chairman of the Asia Society, is also the vice chairman of New York Catholic Charities, chairs the executive committee of the Eisenhower Fellowships, is a board member of ETS, the same organization that conducts TOEFL and GRE, is a board member of the MIT Corporation, and a board member of IIT Bombay, Indian School of Business, MIT Sloan, and NCR. Oh my god. He also donated $3 million to IIT Bombay to have a convention center named after him, known as the Victor Meneses Convention Center VMCC. It was inaugurated by Mr. Kapil Sibal in the year 2011. I've said it before and it bears repeating. All of us were privileged to join IIT for a priceless education, which we got basically for free. And if you think of the context of the times when we were here, India had a lot less money then than it is today. And the claims on government funds were pretty significant. So to create these islands of excellence in a sea of chaos and poverty was really a very far-sighted and brave move on the part of Pandit Nehru, the Education Ministry, and the faculties of IIT. I think the 20-year-old Victor would be a lot more proud of what he has attained in all these years than if he went on to just become another IAS officer. Did I just throw shade at the whole UPSC? You bet I did. Okay, Ashish, get hold of yourself. Enough of the Victor Meneses energy. Ooh, calm down. Also, just in case you're wondering, he did not marry his boss's daughter. He married a Miss India, who also happened to be the second Indian to be crowned Miss Asia Pacific in 1973, Tara Ann Fonseca. When Victor G was asked about India, he said the reputation of Indians, of Indian products in Indian universities has gone through the roof. You can't go into any company in the world today without seeing Indians in senior management. He thinks India has done very well, but the world is changing and we must keep pace with it. He says that we as a nation have to invest a lot more in education and we should get the help from wherever we can. Today it only means that the man has freedom to starve, to go naked, to die of hunger, and to go uneducated. These biting remarks are by Shailesh Gandhi, who was a student of civil engineering in IIT Bombay. Shailesh ji seems critical of the then 1967 India. He complains about the inequality that he sees in Gujarat. I'd been to a village in Saurashtra some 3 years back and I saw a very happy life. I saw that there was an ST bus coming to that village, there were roads, there was a Gram Panchayat radio, there was a windmill in that village. It was all very good. Then a year later I went to an Adivasi area in Gujarat again. And I saw that the people had not even heard of a plane or a train. And I felt that this was not progress. IIT से ग्रेजुएट करने के बाद 1980 में शैलेश जी ने क्लियर प्लास्टिक्स लिमिटेड नाम का एक कंपनी सेटअप किया। वो कहते हैं कि उनका एम था लोगों को रोजगार मुहैया करवाना। उनको उनके किसी प्रोफेसर ने एक एलुमनाई फंक्शन में पूछा था, तब तो समाज और देश को लेके काफी सिनिकल थे तुम, अब क्या सोचते हो? शैलेश जी का जवाब मेरा दिल छू गया। उन्होंने कहा, जब मैं 20 का था और मैं देश की बुराई कर रहा था तो मैं ये मान के चल रहा था कि हम इससे बेहतर करेंगे। मुझे अब रियलाइज होता है कि मेरा जनरेशन मेरे अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा। जब 20 का था तो दूसरों पे इल्जाम लगा सकता था, अब 50 का हूं तो जिम्मा मुझे खुद उठाना पड़ेगा। मैं इस कंक्लूजन पे आया कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। 2003 में शैलेश जी ने अपनी प्लास्टिक कंपनी बेच दी। उस टाइम पे वो RTI या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से वाकिफ हुए। उस टाइम पे इंडिया में कोई नेशनल RTI एक्ट नहीं था, मगर 9 राज्यों में RTI का प्रावधान था। शैलेश जी ने महाराष्ट्र RTI का यूज करा और उन्होंने रियलाइज किया कि RTI में डेमोक्रेसी को सशक्त करने की काबिलियत है। वो काफी सारे RTI वर्कशॉप्स कराने लगे ताकि लोग RTI के बारे में जागरूक हों। उन्होंने ये रियलाइज किया कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने में और करप्शन को घटाने में RTI का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। शैलेश जी नेशनल RTI मूवमेंट का हिस्सा बने और नेशनल RTI एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी में भी शामिल हुए। लेटर ही वाज आल्सो चोजन एज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर where he disposed about 20,000 cases in about 3 years. 2007 में IIT बॉम्बे ने उनको डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस के पद से नवाजा। समाज को चोरी होती है उस पर आपत्ति नहीं है, समाज को आपत्ति यह है कि चोर की जेब से कोई जेब कतरा क्यों पैसा निकाल रहा है। मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ा दुख होता है कि हमारा किस तरह का देश बन रहा है।
शैलेश जी की स्टोरी हमें ये बताती है कि जब कोई देश को क्रिटिसाइज करे, इट इज नॉट ऑलवेज बिकॉज दे हेट इंडिया, इट इज ऑफ्टन बिकॉज दे केयर अबाउट इंडिया एंड दे आर डिसअपॉइंटेड विद द करंट स्टेट. इट वाज हिज क्रिटिसिज्म दैट मेड हिम टेक एक्शन, दैट मेड हिम अकाउंटेबल, एंड थैंक्स टू हिम टुडे दैट वी एज सिटीजंस हैव द राइट टू मेक आवर गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल. Well, I don't know. It seems to be the fashion today to denigrate the country, and when two people meet, they get into a sort of a competition about who can abuse the government better. I've saved the best for the last. This guy was the main reason you asked me to make this video. In many ways, this guy is the soul of this video, with the wisest words, the most intelligent comments. He talks about a desire to explore this country in all its glory and shades. One thing I would like to do very much is to go through this country, top to bottom. I take a little bit of money and a pad and paper, a tape recorder and a camera, and I'd like to go to through this country, walking at a very leisurely pace. He's the only one who talks about India with such a high-spirited optimism. Well, let me put it this way. I would say our achievement is that we have a hopeful tomorrow. Our failure is that our today is very precarious. But if a country can industrialize itself so well in 15 years, I'm sure that we can lick the problem of agriculture also in the next 15 years. And he leaves us with a message that is reassuring, making us proud of the big experiment that is India. If all the people in this country who didn't fancy the prospects in it, we're allowed to quit, I think I'll stay. Because it's something big. It's a huge experiment. And I would like to be part of it. And also point to note, he's the only speaker in this video who was given the privilege of an introduction. Well, my full name reads T.N. Subramaniam. T stands for Tinnavelli, that's the name of my village. N stands for my father's name, Neelakant. And Subramaniam, of course, is my name. Maybe I am talkative and very loquacious and I make my presence felt. Possibly I talk like a preacher or a politician. But then I am entitled to my opinions. But maybe all of you will be disappointed to know that T.N. Subramanian, despite the excitement, decided not to be a part of this experiment. Soon after graduating from IIT Bombay, he left for Massachusetts to pursue his graduate degree and later a PhD at the Brandeis University. He later became a professor of mathematics at the Oakland University in Michigan. He joined Route 1 as a technology architect, a software company that helps with car loans. I don't know if he would be excited about India today, but he's certainly excited about the summation of rational functions by extended Gauss algorithm, or maybe reduction formulas if you're into that. Saman Subramanian, the journalist who wrote an extensive article on him on The Economist, tried contacting him many times. He tried to find about his whereabouts, but he learned that he had suffered a stroke and would not be able to respond. Today we do not know about his current state, but from Dunuji I found out in the emails that the last he had heard, TN was diagnosed with cancer. कहानी का मोरल क्या है? कहानी का कोई मोरल है भी क्या? मुझे नहीं पता. मुझे ऐसा लगा जैसे टीएन ने मुझे धोखा दे दिया. I felt betrayed that he did not participate in that great experiment that he was so passionate about. Did he really mean when he said he wanted to take a pen and paper and go through all this country? इतनी मीठी मीठी बातें, क्या वो सारा एक परफॉर्मेंस था? Was that all a lip service just for an interview? It made me so embarrassed for feeling so emotional and proud of him. It made me even more embarrassed because I had snubbed at people who did not share the same excitement as him. यार 2 घंटों के लिए मीठी मीठी बातें करना ये तो आसान काम है. पता है मुश्किल क्या है? मुश्किल है मध्य प्रदेश के गरीबों के जीवन को सुधारने के लिए अपने लाइफ के 17 साल दे देना. मुश्किल है 50 की उम्र में तुम अपनी कंपनी बेच दो अपने देश की नीतियों को सुधारने के लिए. मुश्किल ये भी है कि इतना सक्सेस पाने के बाद तुम अपने देश को भूलो ना और उसके लिए कंट्रीब्यूट करो. मेरा गुस्सा जब थोड़ा शांत हुआ और मैं थोड़े शांत मन से सोचा तो मैंने अपने आप से पूछा, क्यों आ रहा है मुझे इतना गुस्सा? क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि एक 20 साल का लड़का जो बोल रहा है वो 50 साल के बाद भी वही करेगा. मैं बचपन में कितनी वाहियात चीजें सोचता था. मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, पायलट बनना चाहता था, आई थिंक एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहता था, और अब देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ. तो फिर मैं इस इंसान को सेम राइट्स क्यों ना दूं? मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूँ कि ये लेफ्ट वाला बंदा और ये राइट वाला बंदा सेम इंसान है? पता है ह्यूमन बॉडी की हर सेल ना 7 सालों में पूरी रिप्लेस हो जाती है. हर 7 साल तुम्हारा बॉडी पूरा न्यू हो जाता है, एक सेल नहीं बचता. और इन दोनों में तो 50 साल का अंतर है. इस बंदे का हर सेल 7 बार रिप्लेस हो चुका है आज. फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि ये दोनों सेम इंसान रहेंगे? अगर तुम 20 साल के टीएन से इंस्पायर्ड होते हो तो तुम्हें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है. क्या पता उनकी कोई मजबूरी रही हो यूएस जाने में. मे बी मैथ से इनको इतना प्यार हो गया कि मैथ्स ही हो गई सब कुछ इनके लिए जीवन में. मे बी इनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहा हो यूएस में, या फिर शायद कोई अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स,
कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या पता शायद ही स्टिल लव्स इंडिया। चलो टीएन को साइड में रखते हैं, अपनी बात करते हैं। इंडिया की सक्सेस जुड़ी है तुम्हारे सक्सेस के साथ। जितने लोग होंगे उतने डेफिनेशन होंगे सक्सेस के। तुम्हारे लिए सक्सेस हो सकता है यहाँ रहकर गरीबों के हक के लिए लड़ना। तुम्हारे लिए सक्सेस हो सकता है देश की नीतियों को नई दिशा देना। सक्सेस तो ये भी हो सकता है कि तुम बस यहाँ पर रह के एक सुखी जीवन व्यतीत करो, अपने बच्चों को अच्छी से परवरिश दो, अपने परिवार को सपोर्ट करो। या फिर तुम्हारे लिए सक्सेस ये भी हो सकता है कि तुम यूएस में जाके नए थ्योरम्स का डिस्कवर करो, एक्सटेंडेड गॉस्पर एल्गोरिदम की मदद से रैशनल फंक्शंस को समेशन करो। हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, और क्या एक आज़ाद देश की ब्यूटी ही नहीं है कि वो तुम्हारे लिए गोल डिफाइन नहीं करती। एक आज़ाद देश तुम्हें अलाउ करती है अपनी लाइफ की कहानी खुद लिखने के लिए। तो मेरा सवाल तुमसे ये है, तुम्हारा क्या डेफिनेशन है इंडिया की सक्सेस का? तुम क्या कहानी लिखना चाहते हो अपने लिए? 20 साल के बाद तुम क्या सोचते हो इंडिया का भविष्य क्या होने वाला है? वैसे इफ यू आस्क मी, हिंदुस्तान का भविष्य तो वैसा आज मैं कैसे बता सकूंगी। कमेंट्स में बताना मुझे। I'll see you in the next video। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं जो है तारीफ करना चाहूँगा इंडियन पिक्सल चैनल की, कि उन्होंने जो है इतनी रिसर्च की और इतने लंबे समय के बाद उन लोगों को, यानी सारों को तो नहीं लेकिन चंद लोगों को उन्होंने ढूंढा, उनके बारे में बताया कि वो आज क्या है और क्या कर रहे हैं। चंद तो नहीं, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी लोग थे जो कि काफी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे, उनके साथ तो कांटेक्ट कर ही लिया। लेकिन कुछ एक दो लोग जो नहीं थे, जिनके साथ कांटेक्ट नहीं किसी भी रीजन की वजह से हो सका, तो लेकिन कि उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो निकाली। ऑनेस्टली बोलूं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको एक डेडिकेशन चाहिए होती है इतनी ज्यादा जासूसी करने के लिए कि आपको लोगों के बारे में जानना है कि लोग कहाँ पर हैं। आजकल के टाइम में लोग पता नहीं कहाँ पर, मतलब आपको पता ही नहीं है कि ये लोग इतने सालों पहले जिन लोगों ने बात की है वो कहाँ पर, जो आपका कोई ताल्लुक नहीं है उन लोगों के साथ, लेकिन फिर उनको ढूंढना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात यार। सबसे बड़ी बात होती है ना जब आप इस तरह की रिसर्च करते हैं कि वो लोग अब हैं भी कि नहीं भी हैं इस दुनिया में, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे बीच में जो है एक का उन्होंने जिक्र किया जो इस दुनिया में नहीं है, 2017 में जो है उनकी डेथ हो गई हुई है। लेकिन नो डाउट किसी पे रिसर्च करना, किसी के बारे में इतनी डिटेल निकालना जो है वो आसान काम नहीं है, क्योंकि कभी कभी मैं भी थोड़ा बहुत रिसर्च का काम कर लेता, तो वो जो होती है ना, वो बीच में एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि आपको लगता है यार मैं बस कर दूं, बहुत हो गई है। हाँ, बट पता है जितने भी लोगों की हम लोगों ने बातें सुनी, सुनकर तो वैसे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर जो भी काम कर रहे हैं, कुछ हम कह लें कि सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से भी उनकी अचीवमेंट्स रही हैं लाइफ में, जो उन्होंने जिस तरह से अपने करियर को परसू किया है। लेकिन मुझे ना शिलेश जी की एक बात बहुत अच्छी लगी है, और मैं उनसे बहुत सहमत हूँ एक बात पर, जो कि यूजली हमारे यहाँ पर सोसाइटी में लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, कि आप अपने कंट्री को क्रिटिसाइज करें लेकिन उसकी केयर वाली सेंस में करें। सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप उसके कीड़े निकालें। बट मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है यहाँ पर, आज के टाइम की बात करूंगी, कि जब भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो हेल्दी क्रिटिसिज्म भी होगा ना, तो लोग उसको हमेशा नेगेटिव लेंगे कि आप इसको आप कीड़े क्यों निकालें, भाई आप क्यों गलत कह रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि जितना आप अपनी खामियों को एक्सेप्ट करके उनको सही करते हैं, उतनी ही आपकी सोसाइटी और आपकी कंट्री सही दिशा में जाती है। अच्छा, वैसे ये बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन पहले के अगर वक्तों में बात की जाए ना, तो एक जो क्रिटिसिज्म होता था ना वो अलग टाइप का होता था। लेकिन अगर अब जो आपके क्रिटिसिज्म जो लोग जो है उससे पता किस सेंस में लेते हैं कि यार फॉर एग्जाम्पल दो बंदे बैठे हैं ना, एक किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है, किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है, दोनों में से किसी एक की गवर्नमेंट है, यानी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो क्रिटिसिज्म करने का मतलब ये समझेंगे कि यार ये हमारी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा है। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई ये क्रिटिसाइज जो है वो किस हवाले से कर रहा है, कहना क्या चाहता है अगला बंदा। लेकिन वो फौरन जो है ना अपने आप, खास तौर पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बहुत पर्सनल ले जाते हैं कि नहीं यार इसने हमारे लीडर को ये कह दिया, वो कह दिया। अव्वल तो जो बंदा कह रहा होता है ना उसका भाई इस तरह का कोई होता नहीं है, क्योंकि जिस बंदे को अपने मुल्क से प्यार होता है ना, वो बेशक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर कुछ गलत हो रहा है वो उसे जरूर क्रिटिसाइज करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग यंग होते हैं ना, तब हमारी सोच कुछ और होती है, और हालात के साथ साथ, वाकयात के साथ साथ जो भी चीजें हमारी लाइफ में आती हैं वो डिसाइड करती हैं कि हमें कौन सी दिशा में जाना है। नो डाउट हर बंदा ये सोच रहा है। बचपन में तो मैंने भी सोचा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी बड़ी होकर, बट कभी बन नहीं सकी, और ना मुझे लगता है मैं कभी बन सकती, क्योंकि मैं कट्स नहीं देख सकती, मैं ब्लड नहीं देख सकती।
और वैसे भी थी बड़ी मतलब इंटेलिजेंट भी नहीं थी, तो इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन सकती थी। बट कहने का मतलब ये है कि हर बच्चे का कोई ना कोई एक उसकी सोच होती है। जब हम छोटे बच्चे होते, लाइक मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में 6-7 क्लास से जी मैंने डॉक्टर बनना है, फिर बड़े हो जो फिर आपके जो जितने भी हम कहेंगे शौक हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये बहुत कम लोग होते हैं कि जो उसी डेडिकेशन के साथ अपनी मतलब चीजों को फॉलो करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग हालात के साथ साथ ना डिसाइड करना शुरू हो जाते हैं कि हम लोगों को किस साइड पर अब जाना है। यार मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो सिचुएशन होती है ना जिंदगी में, यानी जो हालात होते हैं वो जो है आपका आपके ऊपर एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। वो डिसाइड करवाते हैं आपसे कि आप जो है वो क्या करना चाहते हैं। अगर बात करूँ मुझे बचपन में सिंगर यानी सिंगिंग करने का शौक था, लेकिन जो है वो फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर वो जिंदगी के सामने चीज आती है। फिर मुझे मैं सीधी सी बात है, मुझे ना लोको पायलट बनने का बहुत शौक था। जब मैं अगर बात करूँ आज से कोई 10-12 साल पहले की बात करूँ, लेकिन जो है फिर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे जो है बड़े होते गए, प्रायोरिटीज बदलती गई, सिचुएशन बदलती गई, तो वो जिंदगी ने पता नहीं कहाँ से कहाँ पर ले आई और गवर्नमेंट ने मौका नहीं दिया। नहीं, वो एक अलग बात है। मैंने स्टडीज भी तो उस हिसाब से नहीं ना की, अवेयरनेस नहीं थी। अगर क्या नाम लेते हैं फॉर एग्जांपल लोको पायलट बनना भी होता तो भाई एक बिजनेस का स्टूडेंट जो है वो एक मैकेनिकल वाली चीज में कैसे जा सकता है। तो ये है आपकी वाली बात भी आ गई कि अवेयरनेस और सिचुएशंस जो है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ पर खड़े होंगे फ्यूचर में। अच्छा, वैसे इस वीडियो में बताया है कि जो मतलब बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत हुई थी। हालांकि लास्ट वाली जो वीडियो थी ना उसमें हमारी अच्छी खासी इस चीज को लेकर डिबेट हुई थी, और मैं ये कहती थी कि पाकिस्तान में मुझे उस टाइम को लेकर अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसे कोई खास फुटेजेस नजर नहीं आती कि जहां पर लोगों का जो एक विजन है वो इतना क्लियर रहता हो चीजों को लेकर के वो क्या परस्यू करना चाहते हैं। और इस पर और भी बहुत सारी ईमेल्स आई, डिबेट्स हुई, मतलब हम लोगों को जो मिली। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखो जैसे मौसम 10 साल पुरानी बात कर रहा ठीक है ना, तो अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया के साथ तो मुझे लगता है कि 10 साल पहले इंडियन बच्चों को हमसे ज्यादा बेहतर पता था चीजों को, ठीक है। तो मैं उस तरह से अभी भी कंपेयर करूं ना तो मुझे लगता है कि इंडियंस उस टाइम पर भी हमसे अवेयरनेस में आगे थे। मैं वैसे ना लास्ट टाइम इस पे और मेरी इनकी काफी ज्यादा डिबेट हुई, तो मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि 60s-70s तक अगर बात करें ना तो तब तक पाकिस्तान जो है एक बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहा था। अगर तब आप देखिए डेवलपमेंट भी थी, काफी ज्यादा चीजें थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे पॉलिटिकल हालात किए गए, चीजों को इस तरह, पॉलिसीज को इस तरह बना दिया गया कि लोगों के ऊपर जो है ना एक वो पर्दा सा डाल दिया गया, और वो उसके बाद उस पर्दे से कभी आगे निकल नहीं सके। चाहे कुछ भी रीजन रही हो, बट मेरा कहने का मतलब ये कि देखो जितनी अच्छी अंग्रेजी हमें चाहे कुछ चंद स्टूडेंट्स की इनकी सुनने को मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों में से मतलब जो लोगों को इस तरीके से इतनी अच्छी अंग्रेजी उस टाइम पर भी आती होगी। लेकिन खैर एनीवे मुझे आज की वीडियो का बड़ा अच्छा ये एक मतलब आइडिया लगा कि किस तरीके से उन्होंने जो स्टोरी जो टाइटल है उसके बारे में जाना कि जैसे कि रशियन मूवी थी वो आई थी उससे प्रभावित होकर मे बी ये रखा गया हो। और जो लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, और जैसे कि नैना जी का आगे से जवाब भी आया, वैसे नैना जी बहुत खूबसूरत थी वाकई में। और अभी भी अगर देखे जाते तो उनके नैना वाकई में अभी बहुत खूबसूरत है। मैं वही इनकी पिक्चर देख के सोच रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है ना उसका जवाब अगर मतलब मैं दूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवत गीता में कृष्णा जी ने बोला है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यानी कि आप अपनी तरफ से अच्छी चीजें करते रहे, अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म करते रहें, फल क्या है वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, और क्या होगा वो बिल्कुल अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हो ना तो आपको उसका फल भी अच्छे से मिलता है। तो आई थिंक अगर लोग मेहनती हैं और वो अच्छे से चलेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर वो कहीं पर लैक करेंगे और कहीं पर मतलब ऐसी चीजें करेंगे जहां पर प्रॉब्लम हो, लोगों को प्रॉब्लम हो, दुनिया को प्रॉब्लम हो या कोई भी मसला हो, तो भी डेफिनेटली उस राह में बहुत ज्यादा रुकावटें भी आती हैं। मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा कि देखिए आपकी तरक्की जो है ना वो आपकी गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपकी गवर्नमेंट जो है आपको किस दिशा में लेकर जाना चाहती है। क्योंकि पॉलिसी मेकर्स, लॉ मेकर्स और उस मुल्क के जो एक सिचुएशन होती है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप वक्त के साथ साथ अपने आप को किस तरह अपडेट कर रहे हो। तो आपका जो, क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी आती हैं जहां पर आके
पब्लिक इंटरेस्ट को एक साइड पे करके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सबसे पहले आगे लाया जाता है। अगर मैं एज ए स्टेट बात करूं तो वो वहां पे बेनिफिशियल भी होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा देखने पड़ते हैं गवर्नमेंट में रहते हुए। तो ये दोनों चीजें जो है ना एक दूसरे के साथ चलती हैं, और मेन एंड फिर वहीं पे आकर रुकता है कि आपके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो आपको कहाँ पर स्टैंड करना चाहते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं हमेशा बोलना चाहूंगी कि लाइक हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये पढ़ लिख के बाहर चला गया, इसकी तो जिंदगी सुधर गई, इसने तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। बट मुझे लगता है कि वो सब लोग जो बाहर जाते हैं और सीखते हैं और फिर वो अपनी कंट्री को भी सर्व करते हैं किसी न किसी सूरत में, तो मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बाहर जाकर भूल जाते हो अपने मुल्क को, तो हाँ मुझे वो चीज गलत लगती है। लेकिन अगर आपकी नीयत ये रहती है ना कि हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो भी कुछ नया सीखें, टेक्नोलॉजी उनमें भी आए और एजुकेशन पर फोकस हो। जैसे विक्टर जी की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको कामयाब होना है, अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है, तो आपको एजुकेशन अच्छी करनी पड़ेगी, एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये चीजें शुरू से लोग बोलते आए हैं कि सीखो, पढ़ो, जानो, जिस पर बहुत कम फोकस होता है हमारे यहाँ पर। बट आई थिंक अगर ये चीजें हो जाए तो काफी अच्छा होगा। वेल ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छी वीडियो लगी। बट जाने से पहले मैं मौजम से पूछना चाहूंगी, मौजम एक वो काम कौन सा होगा जो आप करना चाहोगे सोसाइटी के लिए कि लाइक आपने अच्छा किया अपने मुल्क के लिए, आपको क्या शौक हो? यार वैसे मैं अगर बात करूँ ना तो जो आप काम भी करना चाहते हैं ना सोसाइटी के लिए, तो उसके आड़े जो है ना आपको बड़ी मुश्किलात आती हैं। आपको जो है ऐसी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं कि आप बहुत सारे लोग जो हैं वहां पे जो है ना चीजों को छोड़ जाते हैं। तो मैं अगर बात करूँ ना तो सबसे पहले मैं अपनी सोसाइटी में, अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं अपनी सोसाइटी के लोगों में जो है ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना वो बेकार नहीं है, आप कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वेल अब मैं खुद ही अपने आप से पूछ लेती हूँ, जो मेरा एक फोकस रहेगा, मेरा फोकस एजुकेशन पर रहेगा। नो डाउट मौजम की बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि हम लोग जब कोई काम करने जाते हैं तो बहुत सारी अड़चनाएं उसमें आती हैं, लेकिन ये कि हर किसी के बस में नहीं होता उस चीज को फेस करना। लेकिन अगर आप थोड़े से लेवल पर भी कोशिश करते हो ना चीजों को सही करने की, तो मुझे लगता है कि आपका कंट्रीब्यूशन काफी रहता है। जैसे अभी मेरा ये होता है कि हम एटलीस्ट और कुछ नहीं तो अपने घर के बच्चों को एक सही डायरेक्शन दिखाएं और उनको एजुकेशन अच्छी दें, ताकि वो आने वाले टाइम पे क्या है कि वो चीजें समझ सकें। और अगर मुझे लगता है कि हर घर के लोग, मैं अपनी सोसाइटी की यहाँ पर बात कर रही हूँ, अगर वो इन चीजों पर फोकस करना शुरू कर दें ना कि अपने अपने घर को ही पकड़ लें और बच्चों की एजुकेशन पर फोकस करना शुरू कर दें अच्छे से, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी, हमारी सोसाइटी बहुत बेहतर हो जाएगी। बट आगे से बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आजकल के बच्चे बड़े वो है, बच्चे जो है ना हमेशा तभी रिस्पॉन्सिबल होंगे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से आती है। यानी कि अगर माँ बाप भी केयरलेस होंगे या माँ बाप भी उस तरह होंगे, वो जैसे एक माहौल होता है अजीब तरह का, तो आगे से वो चीज बच्चों में भी ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर माँ बाप जो है वो पहले अपने आप को सुधार ले ना किसी ना किसी तरह, और वो चीज जो है वो फिर बच्चों में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है, और इसी तरह जो है ना बहुत सारे माशरे के मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर मैं यहाँ की बात करने लगा हूँ कि ये चीज जो है ना, अगर क्या नाम लेते हैं आपके वालिदैन कुछ इस तरह ना थोड़े से बदमाश टाइप हैं, तो आप भी आगे से वैसे ही हो जाते हैं, आप उसे डबल आगे निकल जाते हैं। तो नो डाउट एक एजुकेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क, यानी कि वो बहुत फ़र्क लेकर आती है, बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आती है। तो मैं इनसे भी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लोगों को एजुकेट करने की, उन्हें राइट डायरेक्शन दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब लोग एजुकेटेड होंगे ना, आपकी हर चीज़ जो है वो टाइम लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सीधी होना शुरू हो जाएंगी। वेल इसी नोट पर गाइस हम लोग अब आपसे लेंगे इजाजत, और बाकी जो है जो 1967 के हमने जो लोग देखे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। सो जाने से पहले हम थैंक यू भी बोलना चाहेंगे इंडिया इन पिक्सेल्स चैनल को कि उन्होंने हमारी छोटी सी फुटेज ही सही इस्तेमाल की, हमें अच्छा लगा, हम लोग थोड़ा सा हैरान हो गए, हम भी हैं इसमें। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, prayers. goodbye.